હેલો એન્જિનિયર્સ, ગુડ मॉर्निंग। કેમ છો? સારું છે? અમદાવાદ મારું છે। ये सब होता है कभी कभी स्टार्टिंग में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणाकार अथवा अंतर गुणन। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें डिस्क्रिप्शन है नहीं, सब कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स है, इसीलिए मैं कंबाइंड लेक्चर ले रहा हूँ। सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप उसे अंतर गुणन, अदिश गुणाकार पण कही सको छो। Why it is called अदिश गुणाकार? Why it is called scalar product? So let we start। ये टॉपिक R2 और R3 दोनों में डिफाइंड है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं यहाँ पे कि जो सिर्फ R3 में डिफाइंड होते हैं, R2 में नहीं होते। सो फर्स्ट टॉपिक दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, अंतर गुणन अथवा अदिश गुणाकार। सबसे पहले मैं R2 के लिए लूंगा, आफ्टर दैट आई विल टेक फॉर R3। सपोज x bar is equal to x1 x2 and y bar is equal to y1 y2 are the vectors of R2. These are of R2 method. So the dot product is denoted by dot product. You can say scalar product, अंतर गुणन, अदिश गुणाकार. The notation is x bar dot y bar. Don't say it is x bar into y bar, because into and dot both are different thing. into का मतलब हम करेंगे कि वो स्केलर में होता है, रियल नंबर्स में होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन ओनली द वेक्टर फॉर्म। रिमेंबर इट। सो x बार डॉट y बार, क्या डेफिनेशन है उसकी? लेट अस स्टार्ट। x बार इज x1 x2 डॉट y1 y2. The definition of this is sum of product of respective element, अनुरूप घटकोना गुणाकारोनो सरवाळो। सम और एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट मीन्स x1 into y1, x1 into y1 plus x2 into y2. This is the definition of dot product. Now see in the right hand side there is no element form. તમને જમણી બાજુમાં ઘટક સ્વરૂપ નહીં મળે like this કે ભાઈ first element second element, because it will give the real number. It will give the real number. That's why it is called scalar product अथवा अदिश गुणाकार, because this process is between two vectors. આ ક્રિયા બે સદિશો વચ્ચે થાય છે, but it gives real number. એ આપણને અદિશ જવાબ આપે છે। તો એક illustration से हम समझेंगे इसे। See, if we have x bar is equal to 2 3 and y bar is equal to minus 4 1. So by the definition, x bar dot y bar, that is 2 3 dot minus 4 1 is equal to sum of multiplication of respective elements, right? So 2 into minus 4 plus 3 into 1 equal to minus 8 plus 3 equal to minus 5, which is real number, which is scalar, જે અદિશ છે। That's why remember it, the process is being between two vectors. આ ક્રિયા થાય છે બે સદિશો વચ્ચે, but it gives the real number. એ આપણને વાસ્તવિક જવાબ આપે છે। That's why it is known as અદિશ ગુણાકાર. Process is between vectors, but the production is the real number. ક્રિયા બે અદિશો વચ્ચે થાય છે, પણ એનું જે પરિણામ છે એ અદિશ મળે છે, and that's why it is called અદિશ ગુણાકાર or scalar product, अंतर गुणन अथवा अदिश गुणाकार। अंतर गुणन अथवा अदिश गुणाकार, यहाँ पे ब्रैकेट करना जरूरी है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट नेम।
So this is the process. Now some properties of this dot product. First, commutative law. First is commutative law. જેને આપણે ક્રમનો નિયમ પણ કહી શકીએ. ક્રમનો નિયમ, commutative law, that is x bar dot y bar equal to y bar dot x bar we can write. હવે આ इलस्ट्रेशन છે ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. आपको यही से पता चल जाएगा कि अगर मैंने y bar dot x bar भी लिखा होता तो भी मुझे -4 into 2 करना होगा. मतलब 2 into -4 लिखो या -4 into 2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सिमिलरली if you write 3 into 1 or 1 into 3, answer will be same. So after changing the order of the elements or vectors, the result is giving the same answer. That's why we will say the commutative law is here. અહીંયા ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે. So this is called commutative law. Second one is distributive law. Second one is distributive law. જેને આપણે વિભાજનનો નિયમ પણ કહીશું. If we have three vectors x bar, y bar, z bar, for vectors x bar, y bar, z bar, x bar dot y bar plus z bar equal to, it is distribution of dot on addition. So we can write x bar dot y bar plus x bar dot z bar. It is called distributive law. तो ये बात सारी कर दी मैंने R2 के लिए. अब R3 भी सपोज आपको समझना है, तो लेट अस सी R3 के लिए. इफ, सेकेंड केस, इफ x bar is equal to x1, x2, x3 and y bar is equal to y1, y2, y3 belongs to R3, then the dot product x bar dot y bar will be, x bar is x1, x2, x3 dot y1, y2, y3. What is the process? Sum of product of all respective elements. So first x1 into y1 means x1 y1 plus x2 into y2, so x2 y2 plus x3 into y3, so x3 y3. So it is in R3, remember it. Now one more important result, see, ये ज्यादा में यूज करने वाला हूं. ऐसे तो प्रूव दैट वाले सम्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस प्रूव दैट वाले सम्स कम कर दिए हुए हैं. फिर भी सी, इफ x bar is equal to x1, x2, x3, R3 के लिए मैं प्रूव करूंगा, R2 में ये सीधा प्रूव हो जाएगा. चलो, what will be magnitude of x bar? x bar નું માન શું થશે? This will be under root x1 square plus x2 square plus x3 square. You know this, and therefore अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया
So mod x bar square will be x1 square plus x2 square plus x3 square. ये हो गया. Now see, जो रिजल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, now x bar dot x bar, the product with itself, वेक्टर का खुद का प्रोडक्ट खुद के साथ means product with itself. x bar means x1 x2 x3 dot x1 x2 x3. Now according to the definition of dot product, according to the definition of dot product, sum of multiplication of respective elements. So x1 into x1 means will be x1 square plus x2 into x2 बनेगा x2 square plus x3 into x3 बनेगा x3 square. But it is our square of magnitude of x bar. So this is the main result, very important result. याद रखना. Therefore, mod x bar square, that is x bar dot x bar, it is chain between vector and scalar. याद रखना, it is chain between vector and scalar. It joins the vector and scalar. किस तरह से? If you have mod x bar square, so by x bar dot x bar आप वेक्टर में जा सकते हो. तो ये जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कि स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर. देखो स्क्वायर हमेशा मैग्नीट्यूड का होगा. एक्स बार स्क्वायर इज नॉट एग्जिस्ट. याद रखना, एक्स बार स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट. ये है ही नहीं. एक्स बार स्क्वायर जैसा कोई सिंबल या प्रोसेस या ऑपरेशन या कुछ भी नहीं है. सो अगर कहीं पे आपको ये दिखा तो आप ऐसा मान सकते हो कि इट इज मिसप्रिंट या फिर मार्केट में कोई नया मैथमेटिशियन आया है. या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या तो कोई नए मैथमेटिशियन ने कोई नई ब्रांच स्टार्ट की जिसका ये नोटेशन है या कोई टर्म है. राइट? अकॉर्डिंग टू अवर बुक इट इज नथिंग, इट इज मीनिंगलेस. याद रखना. सो स्क्वायर कभी वेक्टर का नहीं होता है या होगा भी नहीं. स्क्वायर करना है तो वो कंपलसरी मैग्नीट्यूड का ही होगा, बिकॉज स्क्वायर इज प्रोसेस ऑफ रियल नंबर. देखो स्क्वायर इज प्रोसेस ऑफ रियल नंबर और ये आप एक्स बार को दे रहे हो, कैसी बात होगी? मतलब जो जिस फील्ड का टॉपिक है, जो जिस वर्ल्ड का टॉपिक है, जो जिस दुनिया का टॉपिक है, वहीं पर वो एप्लीकेबल है. याद रखना. आप ऐसा समझ लो कि अगर 5 लीटर मिल्क और 3 kg शुगर, अब उनको मुझे ऐड करना है, व्हाट विल बी एडिशन? तो आप कैसे करोगे? बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट वर्ड. भाई ये लीटर है, ये लिक्विड है, उसका मेजरमेंट लिक्विड में होगा. भाई शुगर इज सॉलिड तो उसका मेजरमेंट सॉलिड में होगा. सो वी कैन नॉट बी 5 लीटर मिल्क एंड 3 kg शुगर इज टोटल 8 किलोग्राम और लीटर मिक्स किया 8 किलो स्वीट मिल्क. ऐसा नहीं बोल सकते. याद रखना मेरी बात. सो एक्स बार स्क्वायर का एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर आ गया तो समझ लेना मार्केट में कोई नया मैथमेटिशियन आया हुआ है. राइट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार स्क्वायर इज प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ. ये रिजल्ट बराबर याद रखना. बराबर. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. नाउ न्यू टॉपिक. ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमें निकालना है. बेस सदिशो विच्छिन्न कोणों, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. भाई तो ये कैसे मेजर करना है, उसकी फॉर्मूला में रेडीमेड दी यहाँ पे, क्योंकि प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं रखी. समझो कि ये एक वेक्टर है in this direction, it is another vector. So between these two vectors the angle will be acute angle. The angle will be acute angle.
if the vectors are perpendicular to each other, the angle between them will be pi by 2 makes 90 degree. मे बी दिस, ये भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स ऐसे हो. दिस इज द इनिशियल पॉइंट, આનું આરંભ બિંદુ છે, and these are the terminals, આના અંત્ય બિંદુઓ છે. तो यहां पे जो एंगल बनेगा that will be theta and it is obtuse angle, एक गुरु कोण है. सो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल बन रहा है तो मे बी अक्यूट, मे बी पाई बाय 2, मे बी ऑब्ट्यूस एंगल. अगर किसी ने ऐसा सोचा कि सर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे के बदले ऐसे निकला, तो क्या ये एंगल नहीं होगा? नहीं. तो एट दैट टाइम वी विल काउंट दिस एंगल. तो हमेशा आपको याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन पाई एंड शुड बी बिटवीन 0 to पाई. 0 और पाई के बीच में ही लेना है. अगर वो उससे भी ज्यादा बन रहा है तो ऑपोजिट साइड में जो बनेगा दैट विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. એને જ આપણે બે સદિશો વચ્ચેનો ખૂણો કહીશું, ઓલાને નહીં કહીએ. ये एंगल नहीं बनेगा, एंगल विल दिस, मतलब यही पोजीशन उल्टी हो गई. तो अगर दो वेक्टर के बीच में कोई एंगल बन रहा है तो वो कैसे मेजर करेंगे? सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट. इफ थीटा इज एन एंगल between x bar and y bar, if theta is an angle between x bar and y bar, then cos theta equal to x bar dot y bar upon mod x bar mod y bar is formula to determine the angle between two vectors. બે સદિશો વચ્ચે ખૂણો શોધવાનું આ સૂત્ર છે. by this formula we can find the angle between two vectors. अच्छा, आप थीटा को भी यहाँ पे सब्जेक्ट बना सकते हो. now you know the inverse trigonometric functions. તમને પ્રતિ વિધેય પણ હવે ખબર છે. therefore you can write therefore theta equal to cos inverse x bar dot y bar upon mod x bar mod y bar, where theta belongs to closed interval 0 to pi, where theta belongs to क्लोज इंटरवल 0 to पाई. वो हमेशा 0 पाई या उसके बीच में ही होना चाहिए. ग्रेटर देन पाई वी विल नॉट काउंट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो मान लो नाउ सम कंडीशंस वी हैव. सी फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, चलो मैंने थीटा को 0 लिया. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, both the vectors will be in same direction. Both the vectors will be in same direction. magnitude चाहे equal हो या नहीं हो चलेगा. it is not necessary कि magnitude भी same हो. magnitude हो ना हो equal, but if directions are equal the angle will be 0. At that time we will say the vectors are in same direction. If theta is equal to 0, therefore vectors are in same direction. समान दिशाना सदिशो छे, सदिशो समदिश छे, ऐसे वर्ड भी आप लिख सकते हो. Second case, if theta is equal to pi, if theta is equal to pi मतलब एक वेक्टर ये डायरेक्शन में है
दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में है, एट दैट टाइम द एंगल बिटवीन देम विल बी पाई, एंगल बिटवीन देम विल बी पाई। मतलब ये हुआ कि बोथ द वेक्टर्स आर इन opposite direction. If theta is equal to pi, means both the vectors are in opposite direction. Therefore, vectors are in opposite direction. સદિશો વિરોધી દિશાના છે એવું આપણે કહીશું. हम कहेंगे vectors have opposite directions. And the third and last case, third one, if theta is equal to pi by 2, if theta is equal to pi by 2, so vectors will be perpendicular to each other, then vectors will be perpendicular to each other. ये तो चलो समझ में आ गया, पर यहां से मैं एक कंडीशन डिफाइन करने जा रहा हूं. सी, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, देयरफॉर cos pi by 2 is equal to, by this formula, taking theta is equal to pi by 2, मैंने theta is equal to pi by 2 लिया, तो यहां पे ये फॉर्मूला बनेगी x bar double implies, if theta is pi by 2, double implies x bar dot y bar upon mod x bar mod y bar, but the value of cos pi by 2 is 0 and 0 into something is 0, so double implies it will be 0 is equal to x bar dot y bar, double implies we will say x bar dot y bar is equal to 0. It is necessary and sufficient condition to be the perpendicular vectors, to be the perpendicular vectors. Therefore x bar dot y bar is equal to 0, double implies theta will be pi by 2, means both the vectors will be perpendicular to each other. अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे. इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना, लाइक दिस, मोड एक्स बार स्क्वायर इज एक्स बार डॉट एक्स बार, सेम वे एक्स बार डॉट वाई बार इक्वल टू 0, डबल इंप्लाइज बोथ द वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कितना इजी है. तो इतनी प्रॉपर्टीज लिख लो आप एक बार. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन. सदिशनो रेखा परनो प्रक्षेप. ये वर्ड प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप आपको समझना जरूरी है. आफ्टर दैट वी विल डू द सम. एक्चुअली इन आवर बुक इट इज सम्स बेस्ड. अगर ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूं, आपको फॉर्मूला दे दूं, तो आपको सम्स ऐसे ही आ जाएंगे. बट फिर भी फॉर योर नॉलेज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन. सी, देयर आर सो मेनी केसेस. फर्स्ट केस इज, सपोज इट इज अ लाइन, it is a line, it is a line L and it is vector line segment AB. It is vector line segment AB. So what will be the projection of AB on this line? What will be the projection of AB on this line? तो मुझे क्या करना है कि जो हमारे पास वेक्टर लाइन सेगमेंट है वहां से परपेंडिकुलर लेने हैं लाइन एल पर. तो मैंने एक, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एंड पॉइंट तो है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ले ली. सपोज इट इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन ऑन दिस पॉइंट C. तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन लाइन L is vector line segment AC, is vector line segment AC. So this vector is called
projection of AB on AC. In another case, for another case, if we have like this, see, अगर वेक्टर हमारा इस तरह से, it is vector line segment AB, then what will be the projection? It is line L. Then what will be the projection? चलो यहां से, हाँ, it is vector line segment AB. तो देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर लिया and C is foot of perpendicular. C is foot of perpendicular. So this vector in this direction will be projection of AB on line L. This vector AC will be the projection of AB on line L. चलो अगर ऐसा केस हमारे पास आ गया कि सपोज इट इज लाइन L, it is line L, it is vector AB, it is vector line segment AB. अब यहां से मैंने foot of perpendicular L पे लिया, suppose that is L, suppose that is C. तो यहां पर भी यही बनेगा कि वेक्टर AC is projection of vector AB on L. Vector AC is projection of AB on line L. और अगर एक और केस देखा जाए, लास्ट केस, चलो लाइन नहीं, it is our line, it is our vector line segment AB, it is A, it is B. Suppose C is foot of perpendicular, so यहाँ पर भी vector line segment AC will be the projection of vector line segment AB on line L. तो after taking the perpendiculars, उनके बीच में जो segment बनेगा, that segment will be the projection. अब projection के लिए भी हमें दो वर्ड यूज कर रहे हैं, बुक में ऐसा नहीं दिया, projection vector and magnitude of projection और projection. सिर्फ projection वर्ड दिया है, खाली प्रक्षेप વર્ડ મૂક્યો છે, તો હવે મેગ્નીટ્યુડ ઓફ પ્રોજેક્શન એટલે કે પ્રક્ષેપનું માન લખવું છે, और अगर प्रोजेक्शन लिखा है, प्रोजेक्शन वेक्टर लिखा है, तो आपको वहां पे वेक्टर फॉर्म में उसकी फॉर्मूला लिखनी है. तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है बुक वालों ने, पर मैं आपको फॉर्मूला अलग से देने वाला हूं. तो देखो हियर in all these cases, here vector line segment AC is projection of vector line segment AB on line L. सिर्फ समझने के लिए मैंने ये दिया है. नाउ सेकेंड थिंग, एक और चीज, देखो अगर मेरे पास ये फॉर्म होता, सपोज इट इज लाइन L and it is vector line segment AB, it is vector line segment AB, it is initial point, it is terminal, આ આરંભ બિંદુ છે અને આ અંત્ય બિંદુ છે. So what will be projection of AB on L? ये केस में हम प्रोजेक्शन कैसे लिखेंगे? So taking foot of perpendicular on line L from E and B, suppose these are M and N, અહીંયાથી બે લંબપાત લીધા, તો ये जो वेक्टर बनेगा that will be projection of AB on L. Here vector line segment MN is projection of vector line segment AB on line L. तो ये जो बात हो रही थी
वो वेक्टर से लाइन पर के प्रोजेक्शन की बात हो रही थी, सदिश माथी रेखा पરના प्रक्षेपની વાત હતી। अब मुझे क्या करना है कि प्रोजेक्शन फ्रॉम वेक्टर टू वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, सेकेंड टॉपिक। projection of a vector on another vector। एक સદિશનો બીજા સદિશ પરનો પ્રક્ષેપ। एक સદિશનો બીજા સદિશ પરનો પ્રક્ષેપ। ये टॉपिक पर डिपेंडेंट सम्स हमें मिलेंगे बुक में, इस पर डिपेंडेंट सम्स हमारी बुक में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए था। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दूंगा दो में। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A bar on B bar is equal to A bar dot B bar upon mod B bar square into B bar, बराबर याद रखना। और अच्छा, B bar upon mod B bar will be unit vector in the direction of B bar। जो B bar की दिशा में एकम सदिश से B bar upon mod B bar। सो B bar upon mod B bar को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A bar डॉट B bar upon mod B bar, एक mod B bar चला गया into B कैरेट, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो इसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर, सदिश से, प्रक्षेप सदिश से। अगर आपको बुक में प्रोजेक्शन वेक्टर वर्ड यूज किया है, प्रक्षेप सदिश शब्दનો उपयोग करे છે, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। पर याद रखना बुक में ऐसा वर्ड नहीं है, एक्चुअली ये टॉपिक है जो जेडब्ल्यू में या गुजसेट में आने के चांसेस है। तो अकॉर्डिंग टू बुक क्या है देखो, projection of A bar on B bar, projection of A bar on B bar equal to A bar dot B bar upon mod B bar। This is the formula, A bar dot B bar upon mod B bar। Also you can write it this way, A bar dot B bar upon mod B bar will be B cap or B caret, means unit vector in the direction of B bar, B bar ने दिशा में एकम सदिश। तो आपको ये फॉर्मूला लगानी है, प्रोजेक्शन ऑफ A bar on B bar that is A bar dot B bar upon mod B bar। अगर फॉर्मूला चेंज करनी है तो कर सकते हो, अगर B bar का A bar पर प्रोजेक्शन लेना है तो projection of B bar on A bar, the formula will be B bar dot A bar upon mod A bar or B bar dot A caret A cap
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। कितना इजी हो गया। एक और टॉपिक है प्रोजेक्शन के लिए, आपको इस तरह से नोटेशन लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ये रीड करेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, इसे रीड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, कंपोनेंट, गुजराती वर्ड इज घटक, कंपोनेंट और घटक भी आप इसे बोल सकते हो। जब मैग्नीट्यूड आएगा तो ये आपको लिखना है कंपोनेंट। तो ये चलेगा, वो वर्ड हमारी बुक में है नहीं इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। यही इनफ है। सो प्रोजेक्शन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन, ये दो चीज आपको याद रखनी है, राइट। ओके बेटा, अब आ जाओ एक्सरसाइज 10.3 में। अब देखना कैसे जादुई सॉन्ग से यहाँ पे कैसे यू सट सट हो रहा है, कितने इजी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में देख लेना क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, नोटेशन फॉर्म में लिखा है, तो टेक्स्ट बुक में मैं रखो मात्र है जो मोड ए बार इज √3, मोड बी बार इज 2। तो बुक में ऐसा दिया होगा कि ए बार एंड बी बार विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 and a bar dot b bar is √6 is given, then find the angle between them। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास है, चलो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इफ मैंने ऐसा लिखा, इफ एंगल बिटवीन a bar and b bar, it is notation equal to theta, then by the formula cos theta is a bar dot b bar upon mod a bar mod b bar। everything we have, देखो हमारे पास सब कुछ है। what is a bar? a bar dot b bar is ready made given, that is √6 upon mod a bar is √3, mod b bar is 2, ओके, इक्वल टू, तो √3 2 जा √6, तो ऊपर बचेगा √2 अपॉन 2, वापस ही तो नीचे बचेगा 2, √3 से कटा दो, वापस इट इज कैंसलिंग, सो 1 अपॉन √2। इफ वैल्यू ऑफ cos थीटा is 1 upon √2, it is positive, so we can write cos pi by 4, क्योंकि एंगल 0 से पाई के बीच में ही होगा। अगर वो 0 से पाई बाय 2 में है देन cos थीटा विल बी पॉजिटिव, अगर वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में है cos थीटा विल बी नेगेटिव। आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे cos पॉजिटिव होगा और यहाँ पे cos नेगेटिव होगा। सो आपको पता है, सो पॉजिटिव है मतलब एंगल विल बी ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देयरफॉर वी कैन से थीटा इज पाई बाय 4, थीटा इज पाई बाय 4। यही तो हमें लाना था, रेडीमेड वैल्यूज यहाँ पे नीचे, सो हमारा काम आसान हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो थोड़ा सा मसाला चेंज किया, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दी थी, अब यहाँ पे वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये सब वैल्यूज हमें निकालनी है। सी x बार इज, व्हाट इज x बार? x बार इज I कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट, therefore we can write in the form of 1 minus 2 3, and y bar is 3i कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस k कैरेट और k कैप, so it will be 3 minus 2 1। now we have to find the angle between x bar and y bar। तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ x बार, मैग्नीट्यूड ऑफ y बार एंड देयर डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ x बार इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, 1 प्लस 4 प्लस 9
will be root 14. Magnitude of y bar under root 9 plus 4, everything you can see, root 14. X bar dot y bar. X bar is 1 minus 2, 3 dot y bar is 3 minus 2, 1. Okay. 3 1s are 3, 2 2s are 4, 3 1s are 3 equal to 6 plus 4, 10. Now, if angle between x bar and y bar is theta, then cos theta equal to x bar dot y bar upon mod x bar mod y bar. अब हमारे पास सब कुछ है. What is x bar dot y bar? That is 10. What is mod x bar? Root 14. What is mod y bar? Root 14. So 10 by 14 means 5 by 7. तो थीटा बनेगा, थीटा इज इक्वल टू cos inverse 5 by 7 which is required angle. कितने इजी सम्स है, देखो एंगल वाले सम्स हो गए. अब आया प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन की फॉर्मूला हमारे पास है. सी ए बार एंड बी बार आर गिवन वेक्टर्स. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. ए बार અને બી બાર આપેલા સદિશો છે. એ બાર નો બી બાર પરનો પ્રક્ષેપ સદિશ લાવવાનો છે. સો એવરીથિંગ વી હેવ. સી એ બાર that is I caret minus j caret will be 1 minus 1. B bar that is I caret plus j caret means 1 1. अभी देखो प्रोजेक्शन में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी a bar dot b bar की. So a bar dot b bar is 1 minus 1 dot 1 1 equal to 1 1 जा 1 1 1 जा 0 0 0. भाई a bar dot b bar 0 हो गया तो प्रोजेक्शन will be 0 because both will be perpendicular to each other. देखो a bar dot b bar is 0, that is the condition to be the perpendicular vectors. a bar dot b bar 0 થાય તો તે બે સદિશો લંબ હોવાની શરતો છે. therefore a bar is perpendicular to b bar. therefore projection of a bar on b bar according to formula it will be this, but the numerator is being 0 upon mod b bar means under root 1 plus 1, but it will be 0. So the projection of a bar on b bar is 0 in this case. Now see the question number 4 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यही मेथड से करना है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास टेक्स्ट बुक में होगा कि मैंने x बार y बार z बार सपोज कर लिया. देयर आर 3 वेक्टर्स. फर्स्ट इज 1 by 7 2i caret plus 3j caret plus 6k caret. सेकंड थर्ड. अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन? सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर. એવું કહેવા માંગે છે કે दिए हुए ऑल 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर ऐसा शो करो. આપેલા ત્રણેય સદિશો એકમ સદિશો છે તેમ बताओ. मतलब हमें उनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं. सेकंड केस also show that they are mutually perpendicular to each other. વધુમાં बताओ કે ત્રણે ત્રણ એકબીજાને પરસ્પર લંબ છે. ભાઈ પરસ્પર લંબ હોવાની શરત આ છે, ડોટ પ્રોડક્ટ शुड बी 0. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है सो द वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और मैग्नीट्यूड, दो चीजें हमें करनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ साथ में डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है. तो देखो व्हाट विल बी x बार. सी हियर x bar will be, what will be x bar? X bar will be 1 by 7 into 2i plus 3j plus 6 के मतलब 2 3 6 2 3 6. y bar will be, y bar is equal to 1 by 7
3 minus 6 2, 3 minus 6 2, and the last z bar, that is 1 by 7 into 6 2 minus 3, 6 2 minus 3. एलिमेंट सारे वही के वही है, सिर्फ प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। अब सबके हमें निकालना है मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डॉट प्रोडक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार दैट विल बी, देखो ये तो 1/7 ही रहेगा, पर इनके लिए होगा अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 square is 9 plus 6 square is 36 equal to 1 by 7. 36 plus 4, 40 plus 9 means root 49, means it will be 7 by 7 is 1. So it is unit vector because its magnitude is 1. For y bar, magnitude of y bar equal to सेम प्रोसेस 1/7 तो लिख दिया। अब इनका अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, ये भी तो 49 ही होगा देखो, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, सो इट विल बी 7/7, therefore it is 1. So y bar is also unit vector. Last and z mod z bar, magnitude of z bar equal to 1/7 into under root, चलो 6 square is 36 plus 2 square is 4 plus minus 3 square is 9 equal to 36 plus 4 is 40 plus 9 is root 49. Square root of 49 is 7, 7/7 is 1. So the magnitude of all three vectors is 1. ત્રણ સદિશોનું માન 1 છે. Therefore mod x bar equal to mod y bar equal to mod z bar is 1, and therefore x bar, y bar, z bar are यूनिट वेक्टर्स। फर्स्ट केस खत्म हो गया। सेकंड में हमें ये शो करना है कि ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों तीन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ત્રણે ત્રણ એકબીજાને લંબ છે, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट दिखाना है यहाँ पे। नाउ एक्स बार डॉट वाई बार, एक्स बार इज 2/7, 3/7, 6/7, मैं ऐसे लिखूंगा 2/7, 3/7, 6/7, 3/7, 6/7, dot y bar is 3/7, 3/7 minus 6/7, 2/7, minus 6/7, 2/7. Now it is dot product. डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है वो आपको पता है, क्योंकि आज का वही तो हमारा मेन टॉपिक है, मींस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो चलो इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6/49, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस होगा 6 3 जा 18/49 एंड 6 2 जा 12/49, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो 6 minus 18 plus 12 upon 49, न्यूमरेटर बनेगा 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0, दैट इंप्लाइज x bar is perpendicular to y bar. ये फर्स्ट केस हो गया। नाउ सेकेंड केस, y bar डॉट z bar, y bar डॉट z बार इज इक्वल टू, चलो y बार बनेगा 3/7, देन minus 6/7 and 2/7 dot 6/7, 2/7, 6/7, 2/7 minus 3/7, dot product you know
So equal to 6 3 जा 18/49 minus 6 2 जा 12/49 minus 2 3 जा 6/49 equal to 18 minus 12 minus 6/49, ये भी बना 0 and that implies y bar is perpendicular to z bar. Similarly, z bar dot x bar is equal to 0, ये आपको खुद को करना है. z bar dot x bar is equal to 0, तो प्रूव क्या करना है? And therefore all three vectors are perpendicular to each other, and therefore x bar, y bar, z bar are mutually perpendicular to each other. कितना इजी हो गया. तो आज हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं. थोड़ी सी theories and 5 questions in the last lecture. We will complete this exercise or we will continue this exercise 10.3, right? और फिर से आपको बता दूं कि काफी लोगों ने अभी अपनी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, सो प्लीज कर दो. लाइक वाला बटन दबाओ. ये मुझे क्यों बोलना पड़ता है बार बार इन एवरी लेक्चर. अगर आपको नहीं लग रहा है अच्छा, सो लाइक मत करो, पर लग रहा है तो लाइक करो. आप मुझे बोलते हो कि सर लेक्चर अच्छा है और लाइक तो करते नहीं हो, कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है. सो याद रखो, हर एक लेक्चर को आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, बेल बटन भी दबाओ. सब कुछ आपको पता है, ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा.